Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari. And today we are taking up in this episode fourth, I would say, because it's an ongoing, progressive, and a very, very meticulous plan where the goal is to, just share, learn, enjoy, cherish that God has given opportunity to all of us that we can discuss, we can share, we can learn. And learning obviously never stops, but learning always beckons towards materialistic and spiritual success if we are not too hasty, if we are not too narrow minded. So these are not just words we try to practice, though may not be too much, and we are not claiming to be on the exact amazing path, but we try to do so. That's all I can say. So this is the question which I have been discussing on and off. Explain the drain of wealth during industrial drain period in India. Now when we say the industrial drain period, that means something you will bring from 1813 onwards to 1857 and to till 1947. So this is again a very broad period, and a lot can be written on this in a structured way or also in a philosophical way by bringing certain economic terms and key elements where we can talk about certain themes. For example, deindustrialization of India, where we are exporting raw materials and we are getting finished goods in return. This is one thing. Second, we can discuss about commercialization of agriculture, farmers where farmers, tenants, and poverty is increasing, landless laborers are increasing basically. That is the second aspect, indirect aspect of industrial drain. Third is we can speak 2 3 lines about industries in India, how they are industries but they are limited industries, how they are hands are tied in terms of growth, in terms of national income नहीं बन रही है उससे, बेसिकली उन इंडस्ट्रीज से, उन इंडस्ट्रीज से हमारा जीडीपी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यही है ड्रेन ऑफ वेल्थ. और एक एलिमेंट अपना बैंकिंग एजेंसीज, बैंकिंग मैनेजिंग एजेंसीज एंड द रिसीट सिस्टम. एंड ऑब्वियसली एक और भी थीम बन सकती है छोटी सी, वो चौथा पॉइंट आ सकता है, बिकॉज वी आर एक्सप्लेनिंग, we can talk about the guaranteed investments by which we were forced to give them guaranteed returns. तो मतलब themes हैं, but let's see how beautifully and how we are able to write it. So the industrial drain period impacted the just sufficient agriculture system due to commercialization of agriculture practices in India to fuel industrial revolution of Britain. This is one element. थोड़ा नैरो लिया लेकिन ठीक है. Forms of drain of wealth, farmers compelled to grow cash crops, cotton from Bombay, jute from Bengal, indigo from Bihar. बिल्कुल सही बात है. Raw materials, बिल्कुल सही बोला, बात हुई थी, ये अभी हुई. Only one-sided free trade showed colonial nature of trade led to rapid rise of poverty, famines. ठीक बात है. Breaking the trading system of cottage industries and overburdening of Indian agriculture with very low land man ratio. I like the fifth number point, but then too much we can't just speak about agriculture as industrial drain. तो हमें थोड़ा सा, चाहे कितना भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले एक शेप है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में एक शेप है, वो हमें जरूर लानी पड़ेगी. So delayed Indian, rather than delayed, I would say that Indian industrialization got, it got crippled in infancy. कभी आया ही नहीं ना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो इंडिया में, हम स्टंटेड ग्रोथ कह सकते हैं उसकी. Industrial labor safety, working conditions, okay, fine, that is there. Indentured labor forced to be sent to Mauritius. This is a very good point. No discretionary asset investment in infrastructure and technology. Therefore, it was under PC Malwa Bombay plan, and that heavy industries were set up for comparative advantage force. तो आया, बहुत सारे एलिमेंट्स आए, बहुत सारी कोशिश की, लेकिन वही है कि अभी और कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो आई थिंक हम इसको मतलब पहले से ज़्यादा हमारे पास एलिमेंट्स आए तो हम मैंने जिस तरीके से मैंने भी एक आइडिया दिया वो कोई परफेक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन वो भी एक हो सकता है. तो आई थिंक इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट हाउ मच यू आर एबल टू पुट अप इन लिमिटेड टाइम. Explain the reasons for very low rate of growth in 20th century in India after independence. This is a wonderful question. Till pre-reforms, basically, the period between 1900 and 1947 was full of uncertainty and the freedom struggle for independence that couldn't provide upthrust to economic growth. One suggestion I would give to you, that whenever we are starting introduction, because now you have a good command over modern India, otherwise also, then try to bring some data from economics only. Forget about general points, so that you will be able to push it. For example,
when you are saying that freedom struggle for independence and you are talking about uncertainty, so यहाँ पर ऐसा इंप्रेशन आएगा एग्जामिनर के पास कि फ्रीडम स्ट्रगल के कारण या जो भी हो रहा था उसके कारण हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी, जबकि ऐसा नहीं है। फ्रीडम स्ट्रगल तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी फाइट कर रहा है ना, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक्सप्लेन द रीजंस फॉर लो ग्रोथ रेट इन 20th सेंचुरी इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। तो 20th सेंचुरी इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, तो वही बात है कि आपको यही बोलना है कि 900, वो बिल्कुल सही, 1900 से 1947 का जो ग्रोथ रेट का पीरियड भी है, दैट बेसिस इज फॉर्म फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स, because industrialization is going to grow over in England and then our growth rate is going to decline. It's inverse relation first of all. So कुछ भी आप एक बड़ा कोड डाल के यहाँ शुरुआत कर सकते हो। तो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस एंड मिसमैच, ये स्टेटमेंट ब्रिटिश एक्ट्स ऑफ 1909 1919 वर नॉट पॉलिटिकल रिफॉर्म बट मिसयूज ऑफ पावर एंड पोजीशन। आप ये भी कह सकते हो साथ में कि जो डायरकी था, जैसे कुछ भी था, इकोनॉमिक ग्रोथ वाज नेवर इन द सेंटर पॉइंट ना, मतलब वही बात है, आप कह पा रहे हो लेकिन शायद आप सोच रहे हो वैसा लेकिन ला नहीं पा रहे हो। एब्सेंस ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर वही बात है, इकोनॉमिक्स से हटके ना हम दूसरे वर्ड्स पे आ गए। आप अगर बताते कि 1900 से 1947 के बीच में इतनी शुगर इंडस्ट्रीज थी शुरू में, इतनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, लेकिन हम कैपिटल गुड्स नहीं बना सकते थे। एक स्विच भी अगर बनना था वो भी इंग्लैंड से आएगा, कोयला है वो भी इंग्लैंड से आएगा। हम छोटे मोटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मतलब मिडिल क्लास के जो यूज के थे, वो भी इंडिया में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता था। सारे के सारे री रूट होके हमारे पास इंडिया में इंग्लैंड से बन के आएंगे। रेडियो भी आएगा तो इंग्लैंड से आएगा। इकोनॉमिक की बात, जैसे भी हम चाइना की बात करते सर हैं कि भाई लेकिन एक छोटा जैसे सा अगर हम, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वो भी तो एक फंडामेंटल फैक्टर है फॉर बात सही है, लेकिन हमें इकोनॉमी। कोशिश, हमें देखना ये है कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हमसे पूछ रहा है, तो ये आंसर तो, ये बात तो हम बोल ही सकते हैं, लेकिन वो आई बिलीव इकोनॉमिक एस्पेक्ट को तो लाना ही पड़ेगा कैसे भी करके। सोशल रिफॉर्म्स जैसे आपने बोल दिया, बिल्कुल सही बात है। अब ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, बिल्कुल सही बात है, सेपरेट, बिल्कुल सही है ये पॉइंट, लेकिन ये इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे हैम्पर कर रहा है, इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे आज की डेट में जब हम बोलते हैं कि व्हेन देयर इज कम्युनलिज्म या देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर, देयर इज नो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कमिंग, फॉरेन इन्वेस्टर्स देन गो, इनोवेशन का माहौल नहीं बनता। हम कहते हैं, हम कहते हैं कि R&D नहीं हो पाता, हम कहते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर बढ़ाते हैं हम, और जो लेबर रिफॉर्म्स है वो नहीं हो पाते। तो ये बात बिल्कुल सही है जो पॉइंट नंबर 2 है, लेकिन ये, इसको इकोनॉमिक्स से जोड़ना पड़ेगा। आप ये लिख के बोल सकते हो कि मतलब जब लिटरेसी नहीं होगी तो फिर स्किल कहाँ से होगा, और जब स्किल ही नहीं होगा तो नौकरी नहीं होगी। तो मतलब कुछ आपको वो भी बोलना पड़ेगा, जैसे वुमेन राइट एंड रिकॉग्निशन, वेरी ट्रू, पॉइंट नंबर सी इज अमेजिंग, बट द पॉइंट इज दैट कि हाउ इट इज ट्रांसलेटिंग इनटू लो इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन 19 एंड 19, नो कंट्रीब्यूशन, वुमेन वर नॉट, जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अब है, या हम्म। फिर आप कहते हो अभी वुमेन का, अभी हम कहते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, तो तब क्या हुआ? जी। वुमेन राइट्स की तो बात छोड़ दो, तो वो पटकना पड़ेगा ना यहाँ पे। हम्म। रैपिड राइज इन पॉवर्टी ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज करेक्ट, लेकिन हमें इसके सेकंड में आना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि रिपोर्ट बाय देयर वर फाइनेंस कमीशन इवन इन प्री इंडिपेंडेंस टाइम्स, इनकम टैक्स एक्ट 1861 में आ गया। अब आप जब बोलते हो सेपरेट इलेक्टोरेट्स में कि भाई 10 रुपए नहीं होंगे या प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वोट नहीं दे सकते, हम्म। लेकिन वो लिमिटेड लोगों के पास है, तो वो वाला एस्पेक्ट लेके आना पड़ेगा। आप गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जी So सर। you know everything, but what we have to bring it, that is very important. Fair market system was weak. There was no fair market system existing basically. There is no fair market. Market तो already distorted है. हम्म। Double digit inflation and fiscal deficit led to intergenerational equity. Very good point. Now point number H is very important. Very good point. But how you are going to substantiate this? You're gonna say that even जो हमारे जैसे पारसीज थे या जैसे अब बिरलाज है, वो थे ना अंग्रेजों के समय पे, तो हम्म। पार्टनर ही बन पाए बस उनके, लीड नहीं कर पा रहे थे उनको, जबकि जी। वो लीडर थे अपने आप में, लेकिन फिर भी पार्टनर बन रहे थे वो। लिमिटेड एक्सेस टू बैंक क्रेडिट एंड ईज ऑफ क्रेडिट, वेरी गुड। तो आई थिंक द थर्ड पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, here you are fighting and bringing so many ideas. So I think on the surface all points are definitely relevant, but हम्म। then how we are going to make it more specific and more objective, so that we become different from others. The question is that many people can write certain points like this, so how will we be able to chase them behind? Let's move forward. So first, explain कर दिया आपने, drain of wealth refers to the portion of national income that was not available in India for consumption. Fair enough. Drain caused by industrial policy of British is known as the industrial drain period, which मैंने आपको जैसे बोला कि 1833 बोला इन्होंने, तो वैसे 1813 के बाद शुरू हो जाता है, क्योंकि 1813 में आपने क्या किया,
1813 में आपने जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ टी और इंडियन ट्रेड में रखा, बाकी में हटा दिया। हाँ जी। तो ये 1833 भी नहीं आएगा, 1813 आएगा, जो एग्जैक्टली अभी मैंने 2 मिनट पहले बात की। अब वन वे फ्री ट्रेड हमने ही बोला, लेकिन हमने इतना सिंपल नहीं बोला। ब्रिटिश मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट टू इंडिया वर वर्चुअली फ्री विदाउट रिस्ट्रिक्शन। दिस फ्लोटेड इंडियन मार्केट्स विद चीप गुड्स, रिप्लेस्ड हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिजन्स आउट ऑफ बिजनेस। हमें पता है आपने तो इससे ज्यादा लिखा है, लेकिन फिर भी चलिए। एट द सेम टाइम ह्यूज इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, Britain led to India losing it. So nothing special in first 2 points, but then only aspect of synchronizing industrial base being eroded and deindustrialization happening. चलिए आगे। प्रोटेक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। लिटन ने जैसे किया, औरों ने किया। व्हेन एक्सटेंडेड टू इंडियन प्रोडक्ट्स, ब्रिटिश प्रोडक्ट गेव मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेट, वेरी ट्रू। मोस्ट फेवर्ड नेशन देते थे कनाडा से, इंपीरियल, उसको इंपीरियल प्रेफरेंसेस बोलते थे। मोस्ट फेवर्ड नेशन तो वर्ड बाद में आएगा, पहले आएगा इंपीरियल प्रेफरेंसेस। इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट which face competition from British were never given protection. Simple बात है। Despite huge import from India almost always retained, very good point. Rupee was kept overvalued for India. मैंने बोला ये वो स्टर्लिंग और स्टर्लिंग एंड रूपी का जो है रेशियो। इवन ट्रेड सरप्लस विद अदर नेशन दैट इंडिया हैड was exploited by the British to get silk from China and cotton from USA. देखो, see, all common sense point. I appreciate this. Therefore, industrial drain kept Indian economy and foreign trade subservient to British economy and was developed as a complementary to British. So I think fair enough. We will discuss this. Now coming to the second question, Indian economy growing at almost 1% during the entire period from 1900 to 1947 with per capita income at 0.1%. डेटा मैंने भी बोला आपको, एक डेटा दे दो, एक कोड दे दो। तो शिव सुब्रमण्यम एस्टिमेट बता दिया। लो ग्रोथ रेट ऑफ 20th सेंचुरी वाज ड्यू टू, रीजन भी बता दिए। चलिए, लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आपने ही बोला। नेट सोन एरिया, लेकिन भाषा देखो, नेट सोन एरिया वाज एग्जॉस्टेड टिल 1920, एग्रीकल्चर ग्रोथ स्टार्टेड स्टैग्नेटिंग। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर एक्सपेंशन अभी भी है ना, हमारी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर अभी भी कम है। एब्सेंस ऑन प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी इन फूड, तो यानी भाषा बदल दी बस। टेक्नोलॉजी में हमारे पास वुडन प्लॉ थे, आयरन प्लॉ थे ही नहीं। क्या करोगे आप, लोहा ही नहीं है तो मिट्टी अंदर नहीं वो कर पाएगा। मिट्टी अंदर ट्रैक्टर कहां से है, ट्रैक्टर ही नहीं है। मैकेनाइजेशन तो बहुत दूर की बात है। 93% वुडन प्लॉ लिखा भी हुआ है। ओनली 18% एरिया अंडर इरिगेशन। ग्रेट डिप्रेशन कॉज इन टर्न ऑफ ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर टू डिक्लाइन ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड एंड एक्सेस कैपेसिटी जनरेशन। वेरी क्लियर पॉइंट, 1930s का बता दिया। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूटेड 70% ऑफ जीडीपी, आपने ही बोला। 10 स्लो डाउन ऑफ एग्रीकल्चर इंपैक्टेड ग्रोथ रेट। चलिए आगे। अब डिक्रीज, वही मैंने बोला, थीम बनानी पड़ेगी। डिक्रीज इन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडियन इंडस्ट्रियल लैंडस्केप वाज डोमिनेटेड बाय टेक्सटाइल, कॉटन, जूट, हमें पता है। इंटर वॉर पीरियड, वही ब्रिटिश वॉर, फर्स्ट वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच का, रिजल्टेड इन डिक्लाइन इन डिमांड, बिल्कुल सही बात है। कॉटन, मैनी मिल्स वर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। जूट फेल्ड टू अटेम्प्ट कार्टिलाइजेशन, फर्दर डिप्रेस द प्राइसेस, thus leading to fall in the growth of industries and slow down. Nothing special, we know this, but we have to be confident and we have to bring it on the table. Government role for in other countries, इधर अदर कंट्रीज क्या तो सजेस्ट, कीन्स। अच्छा, केन सजेस्टेड द काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी टू टाइड अवे फ्रॉम स्लो डाउन। नो एक्सपेंडिचर वाज डन इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो अब कितना जबरदस्त पॉइंट बोला, ये आपको पता है। इनएफेक्टिव डिस्क्रिमिनेटरी प्रोटेक्शन पॉलिसी। फिस्कल कमीशन, मैंने बोला फाइनेंशियल कमीशन थे, फिस्कल कमीशन थे। सजेस्टेड प्रोटेक्शन टू सर्टेन इंडस्ट्रीज, इट वाज नॉट प्रोवाइडेड ऑन सस्टेनेबल। तो आंसर, these answer themselves are actually learning points for us where we can already our existing notes में हम अभी निकाल सकते हैं। Thus, because of the above given reasons in the domestic inefficiencies owing to the lack of productivity, government apathy towards growth। तो आई थिंक भाषा बहुत अच्छी है, सिंपल है, और हमें पता है ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है, बट हमें वो प्रैक्टिस करना है। Outside events and world wars and the Great Depression, the growth in India remained very low in the 20th century. I think wonderfully done both ways. So now tell me, how do you see it and what do you say? तो एक पॉइंट जो मेरे को हमेशा मतलब माइंड में रखना है कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का आंसर है, तो मैं उसको एक तो लाइट नहीं लिख सकती इन द सेंस कि जो मैं थीम्स चूज कर रही हूँ, जैसे जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें मेरा, Very true. हाँ, डाइवर्जन हो गया थोड़ा। नहीं वो तो मतलब वो भी हो जाएगा, वो इसलिए हो जाएगा कि अभी हो जाएगा वो। बेसिकली पॉइंट ये है, पता आपको भी है सब कुछ, ये हम्म। हाँ लेजर मतलब, फोकस करना है, जी। ध्यान देना है उस समय। मैंने तो बोला ही, see हाँ। our exercise is such that neither you are seeing the answers nor I am seeing the answers, जी। then only we can learn। impromptu ही learn कर सकते हैं, हाँ। उसके अलावा तो असंभव है, नहीं हम्म। हो पाएगा। तो इम्प्रॉम्प्टू कंपेयर करने में, जैसे अब आपने मारा पीटा किया,
लेकिन वो ये थीमेटिक काटना है उसको फटाफट से, हम्म। कुछ डेटा जनरेट करना है, हाँ जी। इकोनॉमिक्स। हाँ भाई बस। आप समझ। जैसे फाइनेंशियल एक्सप्रेस उठाते हो, मिंट उठाते हो, हम्म। कितने सारे अलग, देखो वहां जानबूझ के लेके आते हो आप, जब हम अलग अलग चीजें करते हैं। हम्म। तो यहाँ पर भी ऐसे ही आपको मतलब चौकन्ना रहना है थोड़ा सा। हाँ। जैसे भाषा सेकंड वाले पेपर में मैं तो और भी चाहता हूँ, मैं तो और बोल रहा हूँ भाई, इन्होंने तो फिर भी जनरल बोला है, कोई गारंटेड इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की, हम्म। कोई गवर्नर जनरल इन काउंसिल की बात नहीं की। अब आपने बोला, आपने बहुत सारे थीम बताए, आपने तो बहुत अच्छी थीम बताए, लेकिन उस थीम को जो आप लिख रहे हो शायद वो सोचना है और उसका इम्पैक्ट लेके आना है। हाँ जी। भाई आप लिख सकते हो, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल नेवर अलाउड द स्किल्ड पीपल, लिटरेट पीपल टू कम टुगेदर एंड वर्क फॉर द नेशन, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप नीचे होगी। हम्म। वो तो मैं गलत नहीं मानूंगा, आप लिख सकते हो। जी हाँ, उसमें। डेटा सजेस्ट वन ऑफ द वन। भाई कौन लेके आया ओबीसी एससी ओबीसी रिजर्वेशन, ये सब कौन लेके आया? ब्रिटिश लेके आए, हम्म। ऑलरेडी हमारी टांग खींचने लग गए थे। तो आंसर बहुत तरीके से आ सकता है, लेकिन वो इकोनॉमिक्स के जोन में ही रहना चाहिए। जी। तो उससे एग्जामिनर को पता लगेगा कि स्टूडेंट की थॉट प्रोसेस क्या है, वो कौन से स्कूल ऑफ थॉट से है। हम्म। तो अभी जो आपने लिखा था वो स्कूल ऑफ थॉट हो गया आपका, मतलब कि इट इज नॉन इकोनॉमिक हो गया वो। हाँ, उन्होंने बट शी इज अगेन अगेन राइटिंग, शी इज अगेन अगेन सेइंग कि प्रोटेक्शन दिया, प्रोटेक्शन नहीं दिया इंडस्ट्री, तो वो उस भाषा में बात कर रही है। हम्म। जैसे आप बात करो डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिए, हाँ। तो 100 तरीके हैं उसके भी। लेकिन अगर कोई बात करे टैरिफ लगा दिए, ये टैरिफ हमारा 0-0 नहीं हो सकता, और एग्रीकल्चर गुड्स पे हमें नुकसान है, हम्म। और हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें कोई खास नुकसान नहीं है, फार्मा में अगर हम कम भी कर देंगे फिर भी हम लीडर रहेंगे। जी। भाषा। हाँ। So you are coming to that. So that's what I'm saying. This is very important. हाँ But जी। we'll continue the exercise. We'll continue learning. This applies to all subjects and all areas, because everywhere examination is testing only one thing, that is temperament. So temperament is tested through different kind of writings. Essay is different, and that's how the every subject demands a different kind of a way of writing. So with this, we end this discussion. Thank you very much for sharing and being with us, and let's get success together through Answer Kari.